Honorable Deputy Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Councillor Leh, Additional District Development Commissioner Leh, Ex-Member Parliament, Chairperson Ashoka Mission Katuksan Leh, Chief Planning Officer Leh, Secretary Ashoka Mission Kamutub Leh, and all the esteemed faculty of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, volunteers and social workers. It's indeed an honor to stand before you today to welcome you all to the inaugural ceremony of the All India Institute of Medical Science Super Speciality Medical Camp, which is being organized in collaboration with Ladakh Autonomous Hill Development Council and the Ashoka Mission. On behalf of all the doctors, healthcare workers of Health Department Leh and the people of Ladakh, I extend my warm welcome to the distinguished faculty of AIIMS, Safdarjung Hospital and Patel Chess Institute, who have travelled all the way to Ladakh to serve the people through this noble initiative. As we gather here, I would like to pay tribute to the visionary founder of this camp, late Padma Shri Ven Lama Lobsangji. Though he may not be with us today physically, his legacy shines through the tireless efforts of Ka Mutuble and his colleagues and the entire Ashoka Mission team, who continue to carry forward his noble vision to benefit to the most needy patients of this remote region. I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to the volunteers like Skara and Shenam Chokspa for arranging the lunch during this camp, Ms. Yangzom, who volunteers to serve tea during the camp, and the social workers, NCC cadets, AMT school students, and last not the least, heartfelt gratitude to the healthcare workers of the Health Department Leh to provide the extra effort during this camp and making every camp a successful one. Thank you so much. In the camp, I would like to request the Chairperson Ashoka Mission and Ex-Member Parliament Katuksan Leh and Deputy CC Sir to kindly lit the lamp. DJ Sir, please. सारे डॉक्टर्स खासकर दिल्ली से आए हुए सबको मैं वेलकम करना चाहूँगा कंसल्टिया और से हमारे पेशेंट को हमारे बहुत सारे लद्दाखी फैमिलीज़ को बर्बाद होने से बचाया। और इस साल भी बहुत नंबर्स पे हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं, सबको मैं वेलकम करना चाहूँगा। और साथ में मैं चेयरमैन अशोका मिशन एंड सेक्रेटरी का गुटुब दोनों को मैं आभारी व्यक्त करना चाहूँगा लामाजी के लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए। और 19 के बाद 2021 को नुब्रा में कैम्प हो और पिछले बार ये चंगतांग में हुआ था। और जितना हो सके हम यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए जितना आप लोगों को वहाँ दिल्ली से यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे एक्लेमेटाइज होने के लिए दिक्कतें आते हैं, उतना ही यहाँ पे चैलेंजिंग इसको मैनेजमेंट करने में है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बहुत कोशिश किया गया है जितना हो सके मैनेजमेंट में कम से कम लोगों को चैलेंजेस या प्रॉब्लम कम फेस करना पड़े। और हमारे बहुत सारे ऑफिसर इसमें लगे हुए हैं और बहुत सारे वॉलेंटियर्स खासकर सिविल सोसाइटी से बहुत सारे वॉलेंटियर्स यहाँ पे एंगेज है। कोई हमें मैनेजमेंट करने में काम कर रहा है,
कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ वर्कर के रूप में काम करने का कोशिश कर रहा है और कुछ लोग यहाँ पे चाय और फूड्स का ये प्रबंध कर रहे हैं। मैं सबको कौंसिल के ओर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा। खासकर जितने भी डॉक्टर्स आए हुए हैं आप लोगों को वही मैं विश करना चाहूँगा कि यहाँ पे लद्दाख में जितने भी आप कंफर्टेबली आप लोग फील करेंगे और थैंक यू वेरी मच। स्वर्गवासी पद्मश्री लामा जी का कोई श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से अर्पित करना चाहूँगा। मैं अशोका मिशन की तरफ से जितने भी डॉक्टर साहिबान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से इस बार यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आज इस मौके पर मौजूद ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आंगचुक जी, श्री एडिशनल डीसी ले एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी डायरेक्टर हेल्थ यूटी लद्दाख, ले के जितने सीएमओ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जितने यहाँ पे डॉक्टर साहबान हैं और साथ ही साथ जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पर इस मौके पर मौजूद में, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब सब जानते हैं लद्दाख के लोग इस क्षण का कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लामा लोब्जांग जी ने जो ये सेवा यहाँ पर शुरू किया, बहुत साल गुजरने के बाद भी इस लीगेसी को आगे ले जाने के लिए हम अशोका मिशन की तरफ से और विशेष तौर से जो मुटुब जी जनरल सेक्रेटरी है, लामा जी की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील है और हम कोशिश करते रहेंगे कि इस लीगेसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो विशिष्ट डॉक्टर साहिबान देश के अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर हर साल यहाँ के जितने भी मरीज़ हैं उनके इलाज के हेतु, और न सिर्फ यहाँ आके आप इलाज कर रहे हैं बल्कि लद्दाख को जितने भी उनको रेफ़र करना पड़ता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या और मेडिकल इंस्टीट्यूट में विशिष्ट स्थलों पर, तो वहाँ पर जिस तरह का सुविधा लद्दाख के लोगों को लामा जी के इनिशिएटिव से, आप लोगों की सहायता से मुहैया है, मैं लद्दाख के लोगों की तरफ से बहुत ही आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी और ये उपलब्ध होता रहेगा लद्दाख के लोगों को। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जितने भी वॉलंटियर्स जो इसमें सम्मिलित थे इस सेवा को यहाँ पर लोगों तक पहुँचाने के लिए, मैं उनकी तरफ से सभी डॉक्टर साहबान का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा फिर करना चाहता हूँ। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम आप लोगों के जितने भी यहाँ पर इस सेवा को यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए जो सहायता हम लोगों की तरफ से हो सकता है, उसको और भी हम कोशिश करेंगे आगे। मैं इस मौके पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और जो एसएनएम हॉस्पिटल के अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं हुआ रहा है। अशोक मिशन की तरफ से विशेष तौर से मैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हमारे चेयरमैन श्री टशी गलसन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। न सिर्फ उन्होंने अशोक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लामा जी की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल उन्होंने सपोर्ट किया है, काफ़ी अच्छे अमाउंट से हर साल उन्होंने यहाँ पर ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के बजट से उन्होंने अशोक मिशन को ये
फंड उपलब्ध कराया है, जिसके चलते अशोक मिशन जो है अपना जो ये मिशन है उसको आगे बढ़ाने में हम सक्षम है। मैं आप सबका एक बार फिर यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी लद्दाख के दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर मरीज़ आए हैं, आपने देखा होगा नीचे कितना लोग कितनी संख्या में यहाँ पर आते हैं, तो उन सब की तरफ से आपको एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं, शायद उनमें से सीनियर मोस्ट इस हिसाब से हूँ कि 2005 में से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सबसे पहली बार मैं 2005 में आया था। हालांकि हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर कौशल वर्मा हैं, ये हमारे डीन हैं, तो उस हिसाब से ये हमारे सबसे सीनियर हैं, मगर दूसरी सीनियरिटी के हिसाब से मैं सीनियर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे लंबे अरसे से यहाँ आ रहा हूँ और मैंने शायद यहाँ कई बार और मैं आपको ये बता सकता हूँ सब डॉक्टर्स की तरफ से कि यहाँ पे आके हम सबको अच्छी बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ पे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो जितनी सिंसियरिटी से हॉस्पिटल में भी काम करते हैं और जितनी सिंसियरिटी से हम लोगों को वेलकम करते हैं, हम सबके साथ मिलते जुलते हैं, उसमें हम सबको बड़ी खुशी होती है। और काम करने का जो मज़ा आता है ना, वो भी याद रहता है कि वहाँ पे अच्छा काम किया था। और लोगों की जो स्पिरिट है यहाँ पे, मैं कई जगह गया हूँ, बहुत जगह मैंने कैंप्स वगैरह में भी अटेंड किए हैं या काम किया है, तो जो सिंसियरिटी मुझे यहाँ पे मिलती है वो उससे बड़ी खुशी मिलती है। और आप सब लोगों का धन्यवाद। अशोका मिशन, आप एंगचुक साहब, डॉक्टर थिनलेस तो पहले ये इंटरनल मेडिसिन में प्रोफेसर थे, अब ये मेडिकल डायरेक्टर बन गए हैं, तो इनको तो मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूँ। और आप सब लोगों का धन्यवाद इस मिशन से जुड़ने के लिए। मैं एम्स फैमिली की तरफ से, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एम्स डायरेक्टर की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से जो यहाँ पे आज मौजूद हैं, और अपनी तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ कि एक बार फिर से आप हम सभी लोगों को आपने बुलाया है और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों से मिलने का और यहाँ पे कैंप करके जो मरीज़ यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं 1 साल से, उनको देखने का फिर से एक मौका क्रिएट किया है। अध्यक्ष जी जो कि अशोका मिशन के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, और मोटूब जी जो इसके साथ एक तरीके से एक सेंट्रल पिलर हैं अशोका मिशन के, जो कि इसको यहाँ से ही नहीं दिल्ली से भी चला रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ में इसके साथ लगन से जुड़े हुए हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, उसको पहले से भी ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। और इस अवसर पे हम लामा जी को ख़ास तौर से याद करते हैं, क्योंकि उनके समय में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। और पिछली बार जब मैं आया था तो लामा जी हमारे साथ में थे। लास्ट ईयर मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं किसी और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में बिज़ी था, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया था। लेकिन लामा जी का लगाव इस प्रोग्राम के साथ में, लामा जी का काम जो था वो तो बहुत सारे क्षेत्रों में था। समाज के एक हेल्थ जो है, एक मुझे लगता है कि एक छोटा सेगमेंट था जिसमें वो काम करते थे। उसके अलावा जब उनका एक फंक्शन दिल्ली में हुआ था जिसमें भी मुझे जाने का और बोलने का मौका मिला था और लोगों से मिलने का मौका मिला था, जिसमें मुझे पता लगा कि ये तो एक बड़ा छोटा सेगमेंट था जिसमें लामा जी काम कर रहे थे। समाज के और बहुत सारे जितने कंपोनेंट या हिस्से हैं उनमें उनका काम बहुत बड़ा काम था और हम लोगों को लग रहा था कि शायद यही बहुत बड़ा काम है, लेकिन इस काम में भी वो पूरी तरीके से लगे हुए थे। और जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे तो वो इंश्योर करते थे कि वो हर एक हमारे डॉक्टर से, हमारे हर एक एक्सपर्ट से पर्सनली इंडिविजुअली जा कर के मिलते थे
और पूछते थे कि डॉक्टर साहब सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है। I mean, such level of personal affection and interaction, it's rare. It shows the humility of the person, it shows the commitment and your personal connect to another person, and also the respect that the person has towards you. और यही एक वजह थी कि जिससे ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एम्स में 25,000 लोग काम करते हैं, जिसमें से 1,000 के करीब फैकल्टी मेंबर हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वही लोग जो हैं बार बार आते हैं, करीब करीब, ऐसा नहीं है कि बदलते नहीं हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक उनके साथ में एक संबंध है, एक जुड़ाव है, एक लगाव बना हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे लोग नहीं आना चाहते, वो भी लोग आते हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। कुछ लोग जब नहीं आ पाते हैं तो दूसरे लोग आते हैं। और इसलिए है क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है, आप लोगों का अफेक्शन है, आप लोगों की केयर जो है, वो सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी है। एक पर्सनलाइज तरीके का एक एम्बियंस यहाँ पे मिलता है, एक पर्सनलाइज तरीके का अट्रैक्शन है, एक पर्सनलाइज तरीके का एक अटैचमेंट है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं। और हमें ये खुशी होती है, हम उन लोगों की सेवा कर पाते हैं, उन लोगों को देख पाते हैं जो दिल्ली नहीं पहुँच सकते, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, या तो फाइनेंशियल रीजन से नहीं कर सकते हैं या फिजिकल रीजन से नहीं कर सकते हैं, तो उनके यहाँ पे केयर हो जाती है। ऑपरेशंस हो जाते हैं, हमारे सर्जन दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट से हैं, दूसरे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये उन लोगों को देखते हैं जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे देखने के बाद में भी अगर उनको ज़रूरत होती है कि वो दोबारा से वहाँ दिल्ली में जाए, तो ये सारे लोग फॉलोअप के लिए भी उनको वहाँ पे देखने के लिए भी मौजूद होते हैं। तो मैं एक बार फिर से जो है अशोका मिशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस लगातार चलने वाले प्रोग्राम को बनाए रखा है, और मुझे उम्मीद है कि यह आगे भी चलता रहेगा। और लद्दाख हिल काउंसिल का जो कि लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो उनका भी एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और अपने सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनका कमिटमेंट है इसके लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सब लोगों का भी एक बार से फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये मौका एक दिया है, एक मौका बनाया है कि हम लोग फिर से यहाँ पे आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हर बार जो है इस कैंप का फ़ायदा लोगों को होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, और हम लोग भी इस कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं और करेंगे। थैंक यू। सर, आज से यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगा रहा है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं आप ये हर साल करते हैं? जी, इसमें जैसे हर साल की तरह जो अभी कोई 28 डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एक डॉक्टर सफदरजंग से और एक डॉक्टर पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। तो उसमें से जो स्पेशलिटी है तो आप लगभग सारे स्पेशलिटी है, एक दो छोड़ के, तो उसमें से मैं अगर संक्षिप्त में बता दूं तो न्यूरोलॉजी हुआ है जी, और न्यूरो सर्जरी, फिर उसके बाद आई का है, फिर कैंसर ऑन्को सर्जन भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंसर केसेस है जिनका ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था, वो लोग भी यहाँ पर रिव्यू के लिए आ सकते हैं। और फिर आपका यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अमलेश सेठ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हैं वो आए हुए हैं। तो ऑलरेडी लाइन अप किया है, सर्जरी ऑलरेडी कल परसों से कर रखा है, तो वो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में अभी चले गए हैं। तो उसी तरह से डीन और जो डर्मेटोलॉजी का हेड है कुशल कुमार वर्मा, वो भी आए हुए हैं। तो उसी तरह से और भी जो ऑर्थोपेडिक का जैसे प्रोफेसर है डॉक्टर विजय कुमार, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में हिप और नी रिप्लेसमेंट किया था, वो भी आए हुए हैं। तो उसी तरह से मेरे ख्याल से कोई 40-50 केसेस जॉइंट रिप्लेसमेंट का उन्होंने लाइन अप किया हुआ है, तो वो लोग भी है।
तो उसी तरह से लगभग मैं अगर कहूँ तो ENT का आ नहीं पाया है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी नहीं आ पाया है क्योंकि लास्ट मिनट पर वो बीमार हो गए थे। तो वो GI सर्जरी जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जरी है, सर्जरी के जो डॉक्टर है वो भी आए हुए हैं। तो उसी तरह से लगभग मैं जैसे आपको बताया है कि ENT और ये गैस्ट्रो को छोड़ के लगभग सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। पहले जो पिछले बार की बात करें तो यहाँ कुछ माइनर ऑपरेशन भी हुआ करते थे, जो खासकर स्पेशली नी रिप्लेसमेंट, ऐसा भी है इस बार भी? जैसे कि आप लोगों को पता है कि नी और हिप रिप्लेसमेंट पिछले मेरे ख्याल से 8-10 साल से कर रहे हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से कोई 500 जॉइंट रिप्लेसमेंट ले में ही हो चुका है। तो इस साल भी हमें उम्मीद है कि अगले 4 दिन में लगभग 40 से 50 जॉइंट रिप्लेसमेंट का करने का उनका प्लान है। तो जैसे उसके बाद जैसे यूरोलॉजी का है, यूरोलॉजी का भी आज 4 केसेस उन्होंने रखा हुआ है। तो ऑन्को सर्जन भी आए हुए हैं, तो ऑन्को सर्जन भी मेरे ख्याल से 3-4 कैंसर के केसेस है वो भी ऑपरेट यहाँ करने वाले हैं। तो उसी तरह से GI सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल सर्जरी कहते हैं, तो उनके भी डॉक्टर आए हुए हैं, तो वो भी कुछ सर्जरी करेंगे। तो लगभग मेरे ख्याल से लगभग 50 से 100 के बीच में कुछ वो लोग सर्जरीज़ वगैरह करने का उम्मीद है। और लगभग मुझे लगता है कि 3,000 के आसपास OPD के लिए आएंगे। तो उसके बाद जो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में यहाँ ले जाएंगे। तो उसके लिए हमने व्यवस्था किया है कि जितने भी रेफ़र पेशेंट हैं उनको यहाँ पर हम पूरा उनका लिस्ट बना के जैसे जैसे वो आना चाहिए अगले सितंबर के एंड में, फिर अक्टूबर नवंबर पूरे सर्दियों में जिस तरह से वहाँ आएंगे, इमरजेंसी होगा तो थोड़ा जल्दी आएंगे, नहीं तो सबका जो भी ट्रीटमेंट करना होगा तो फर्दर ट्रीटमेंट हम दिल्ली में करेंगे। सर के बाद नुब्रा में भी कैंप होगा, उसके बारे में? हाँ जी। अब पिछले 2021 से हमने शुरू किया कि लेह और करगिल छोड़ के रिमोट एरियाज़ में भी जाने का। तो उसी सिलसिले में पहले ज़ंस्कार गए थे, तो ज़ंस्कार में कैंप किया था। उसके बाद न्योमा जो चांगतांग एरिया में है, और पिछले साल टांगसे में किया। तो इस साल नुब्रा में जाने का वो है। लगभग मेरे ख्याल से 19-20 डॉक्टर्स साथ में जाएंगे और नुब्रा में 2 दिन का कैंप होगा। 18 को शाम को वो लोग को वहाँ पहुँचेंगे और 19 को और 20 को दिस्कित जो PHC सेंटर है वहाँ का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर कैंप होगा। वो पूरा फुल मेरे ख्याल से 2 दिन का नुब्रा में होगा। तो नुब्रा वालों से मेरा निवेदन है कि वो लोग वहाँ आके दिखाएं, और जिनका जो बीमारी जो बहुत ही कठिन बीमारियाँ होंगे तो वो शायद फिर ले भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वगैरह डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। सर किस तरह की पेशेंट जो है यहाँ आना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे, जब एम्स का डॉक्टर आया तो सब उठ के आ जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होते हैं, तो देखने वालों को भी काफ़ी दिक्कत होते हैं। और जिनका नंबर होता है उनको भी काफ़ी दिक्कत रहती है। तो आप थोड़ा संक्षेप में उसमें ऐसा है कि हमने पहले भी जैसे CMO साहिबा को हमने पहले से रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी जो पेरिफेरी में जो हॉस्पिटल्स है तो वहाँ से भी रेफ़र करेंगे, जो बहुत सीरियस केसेस होंगे तो उनको रेफ़र करके यहाँ पर दिखाएंगे। और उसके अलावा पिछले कुछ वीक्स में या मे भी 1 महीने में यहाँ के डॉक्टरों ने भी अपना पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है, जो जिनका कंसल्टेशन इस एम्स के डॉक्टर्स के साथ होंगे। तो उसको तो छोड़ दीजिए, जैसे जितने भी जो सर्जरी होने का है 40-50 जैसे नी रिप्लेसमेंट है, उसी तरह से यूरोलॉजी का ऑलरेडी शुरू हो चुका है आज। तो सब केसेस जो जटिल है, जो कठिन है, वो उनका ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। तो बाकी जितने भी जो अभी आए हुए हैं, जितने भी जो बाहर से हैं, तो उसमें से भी कुछ बहुत केसेस जो बहुत कठिन होगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ करेंगे। फिर ज़रूरत होगा तो दिल्ली में भी ले जाएंगे। और बाकी जो जितने भी यहाँ आए हुए हैं तो उनको तो एकदम नहीं रोक सकते हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल से जितना हो सके देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी।